स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे इस सक्सेस में, क्योंकि स्किल इंडिया की वजह से आज इन सारे कौशल को मान्यता मिली है। Throughout our journey, one very important highlight was being nominated for Startup India Awards. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे यदि आप देखें तो 2016 से लेके आज तक 33% इम्प्रूवमेंट है। स्टार्टअप इंडिया अभियान आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। आनंद से ही मैंने 8 से 9 बच्चे एक ही साल में इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई करवा दिया है उनको। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हर घर उन्होंने चिट्ठी भेजी थी, तो फिर मेरे पापा को ये लगा कि मेरी तो एक ही बेटी है। फिर उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, पढ़ाया। तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। ड्रोन दीदी योजना में हमें इतना लाभ मिला है कि आज मैं लखपति बन गई हूँ। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? मेरे देश की युवा शक्ति है। मैं आपको बार बार वादा करता हूँ, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। किसी ने कारोबार शुरू किया, किसी ने ओलंपिक का सपना देखा, किसी महिला ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, किसी किसान की जिंदगी बदली। लेकिन इन सभी कहानियों में एक चीज कॉमन है, अवसर। नीतियां कागज से निकलकर जब किसी इंसान की जिंदगी बदलती हैं, तो वो बदलाव कैसा दिखता है? Without PM's vision, through initiatives like Startup India and Atmanirbhar Bharat, our Prime Minister has continuously championed entrepreneurship and systematically solved hurdles. He has already dropped more than 25,000 compliances, which has helped significantly in ease of doing business. With startups and MSMEs driving the economy forward, our goal of 5 trillion economy doesn't look too distant now. For example, GST Council's recent decision on removing mandatory online registration requirement for small businesses will help in their further digitization. Not just Meesho, several other startups have benefited from PM Modi's forward-looking initiatives. Government has also floated 10,000 crore fund for helping in their funding requirements. About 3 years back, government dropped angel tax, which has helped a lot of young startups in being able to raise funds from angel investors. Initiatives like these are a good reflection of PM Modi's enthusiasm and passion about startups in India. In MapIndia's personal story, he talks about startups, he talks about unicorns. As a result of many of his activities, MapIndia was also able to go public last year. Without this atmosphere that he has created of positivity, of economic progress, of a kind of a resurgent India, maybe we could not have gone public. So our sincere gratitude to him, just like so many other companies who have become unicorns, who have been able to go public. That's what I would love to communicate to people, that he's really a unique man, a unique leader who is carrying the country forward. The needs, the pains, and the hopes of all Indians. This is what makes him unique. 10 years ago in 2010,
I was building a startup in electricity theft detection. I used to work with a lot of governments, and the atmosphere was completely different. Now, when you go to a Startup India or a Niti Aayog or Invest India or METI, you have folks such as, formerly Mr. Aayog at METI. They are super progressive, super intelligent, completely in sync with the time, and just taking bold decisions and helping drive India ahead. So I think just surrounding yourself with amazing people is another quality which PM Modi showcases very, very clearly. And it's not just about the big vision statements, right? The Central Doctor is the big vision statement, or 5 trillion economy is the big vision statement. It's also the smaller things. Throughout our journey, one very important highlight was being nominated for Startup India Awards. While hearing his speech, I was just surprised when the Honorable Prime Minister mentioned my name and he gave a detailed, long feedback on the recommendations we put forward. I think that moment was truly a validation, not just for a startup like ours, but everyone who believed in the recommendations from the sector. His specific suggestions involved of startups similar to us working with schools and colleges, working on the different art and culture what our country has, and today we are very happy to share with you that we are working with more than 60 schools under a project called Fad Se Pad, which not only talks about the revival of the Fad art of Rajasthan, but also involves students and school teachers, including schools, working on various subject topics integrating into the Fad art. PM Modi is definitely the startup PM. I don't think I've ever seen a leader like him who would believe, because startups are all about stories, and someone who takes that effort in understanding the journeys, the real stories behind why startups are there and the value what the startups are creating. The energy of our Honorable Prime Minister is the kind of initiatives I keep seeing, irrespective of me being from a particular sector, but we keep getting emails and we know a lot of stuff is happening for various different sectors. What we have seen in the Indian ecosystem, especially since the Prime Minister took charge and brought spotlight on Startup India, is something that is very, very monumental and something that is a key instrument in putting India on the startup map of the world today. When you look at my space, healthcare, a highly regulated industry, and startups are disrupting the way things were happening. Many different business models were being turned on its head. Digital health is taking off in a big way all over the world. And the Prime Minister has again shown leadership by making digital health the center stage of how healthcare policy is being done in the country today. Whether it is the Ayushman Bharat Digital Health Mission, the UHI, again, or telemedicine guidelines, a lot of positive steps that have been taken to move a sector that was stuck in a way of doing things and propelling it straight away into a position where I firmly believe that if we do it right, we continue down this path, India will not just be one of the followers or participants in the global digital health ecosystem. India will define the way the global digital health ecosystem will be created, and we entrepreneurs believe we have the confidence, we have the abilities, and we have all the support that we need that will take us there. So I think the vision that the Prime Minister set out for what an entrepreneur can build. इसके अंदर में I had the opportunity to engage with Honorable Prime Minister couple of years back, 2 साल पहले, where we met to discuss about tourism and travel के अंदर में क्या opportunities हो सकती हैं. I got, I think, 15 minutes of time. True to the fact, meeting started 1 minute before time. Meeting went a few minutes ahead, but that 15 to 20 minutes was undivided discussion on travel and tourism. It felt to me as the Prime Minister understands and thinks about travel and tourism only, even though I know that he has probably 1,000 other things to deal with. So very deep ability to have attention and not just macro conversation, right? Generally आपको लगेगा कि if he is the Prime Minister of the world's second biggest country and the world's largest democracy, he would only be thinking 30,000 feet above.
but he can have discussions which are right down at the absolute ground level. And I think this ability of having massive depth and then massive breadth, I always say looking, with telescope and microscope at the same time. I think that makes our Honorable Prime Minister, I have told this a few times, he is truly a startup Prime Minister. He has many attributes of an entrepreneur, right? He thinks big in terms of impact, but before doing so, he experiments that at a small scale. His ability of being able to look at large scale initiatives, but then tracking its execution very closely. So, just for example, why, Startup India is one enabler, but it doesn't happen like 100 unicorns don't get created out of one initiative, right? So there were quite a few things, all had to come together for us to be here. And I can tell you that the world and even Indian own entrepreneurial ecosystem and our talent is in surprise about how have we been able to get there. I mentioned to Honorable Prime Minister that my mother for the longest time thought that pursuing entrepreneurship was a bad decision. And it was probably because some of my friends convinced me to do entrepreneurship, which is probably not the right thing to do. My elder 3 siblings are engineers, business school. I have 3 elder siblings. I'm the youngest of the lot. So my parents always thought I was a black sheep anyway. But the first time when the Prime Minister talked about me in Startup India, I think my mom sent me a message, you must be doing something right, of course in Hindi. So I was telling our Honorable Prime Minister that while there are many professional growth that startups in India have benefited by his policies, but I have personally also benefited because my mom is now okay with me to pursue entrepreneurship and not troubled about it. पहले निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर थीं, आज खुद रोजगार दे रही हैं। जब वंदे भारत एक्सप्रेस जो गांधीनगर से लेके मुंबई तक जाती है, उसका इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, तो उस इवेंट के लिए 30 सितंबर 2022 के दिन जब गांधीनगर से लेके अहमदाबाद के लिए ये ट्रेन का फर्स्ट रन था, उसमें मोदी जी से जो स्टार्टअप्स में विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से एक अचूक भी था और अचूक को रिप्रेजेंट करते हुए मैं गई थी और तब मोदी जी से हमारा मिलना हुआ। सबसे पहले मुझे ये ख्याल आया कि हमको क्यों बुलाया, ये बहुत बड़ा इवेंट है और गुजरात में आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे उद्योगपति हैं, उनसे भी वो मिल सकते थे, उनको बुलाते तो सब दौड़ते हुए जाते। तो इतने लोगों के बीच में जो हम जैसी नारियां हैं जो कुछ उद्योग क्षेत्र में कुछ करना चाहती है, उनको चुन चुन के क्यों बुलाया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें भी उनकी सोच है कि उनको ये दिखाना है कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ विमेन एम्पावरमेंट की, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और वो ये यात्रा के दौरान उन्होंने एक्चुअली दिखाया कि मोदी जी जो बोल रहे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, वो चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ संवाद करें, उनकी बातें सुने और उनको भी एक बड़ा फलक दिखाए कि आप जो आज काम कर रहे हैं उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, बड़े स्केल पे उसके ऊपर सोच सकते हो। तो हमारी मोदी जी से जो बात हुई, भले 5 मिनट ही हुई, बट उसमें भी हम 5 विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी। जब उनसे मिले तो उन्होंने जो बात की उससे ये एकदम बाहर आया कि नंबर 1 वो 100% उस मोमेंट में प्रेजेंट है। मतलब हम जो जाने वाले थे शायद उनको बैकग्राउंड दिया होगा, बट वो ट्रेन जर्नी के दौरान वो इतने लोगों से मिले तो सबको तो याद नहीं रख सकते। तो जब हम मिलने गए तो हमारी बात वो सुन रहे थे और एक बात पे वो तुरंत प्रतिभाव दे रहे थे। जैसे कि मेरे साथ एक डॉक्टर थी जिनका मेडिकल स्टार्टअप था, तो उन्होंने तुरंत पूछा उनको, मोदी जी ने उनको ये पूछा कि 5G आने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जो आज काम कर रहे हो वो कौन से स्केल पे जा सकते हो। दूसरी एक विमेन एंटरप्रेन्योर थी, उनका फूड स्टार्टअप था। तो मोदी जी ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप जो काम कर रहे हो, यदि हमें जो हम मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम करते हैं उसमें आप क्या वो लेवल पे काम कर सकते हो, आपका जो भी स्टार्टअप है।
मतलब हर एक के दिमाग में उन्होंने बड़ी बात डाली कि आप जो छोटा काम आज कर रहे हो, भले आज मे बी घर के एक रूम से कर रहे हो या 5, 25, 50, 100 लोगों तक वो बात जा रही है, उसको आप बड़े पैमाने पे कैसे कर सकते हो। तो ये बात जब ये यात्रा में हम उनके साथ थी तो 1-2 मिनट में भी इमीडिएटली पता चलता है कि वो हर चीज़ में बारीकी से सोच रहे हैं, हमको क्यों बुलाया, और उससे आगे हमारे दिमाग में भी बात डाल रहे हैं कि हमको आगे कैसे सोचना है। 2021 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ये भी मोदी जी का ही ब्रेन चाइल्ड था। जितने भी स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है वो सब उसमें पार्टिसिपेट करें और उसमें से चुन के जो बेस्ट है उनको एक रिकॉग्निशन देने के लिए 2022 में 16 जनवरी को मोदी जी खुद आए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि हम फाइनलिस्ट थे। बड़ी बात ये थी कि उन्होंने वो कार्यक्रम वहाँ पे ख़त्म नहीं किया कि सबको अवार्ड दे दिया और घोषित कर दिया। उन्होंने एक और चुनौती रखी कि आपने अपने क्षेत्र में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन दिया, अब आप नेशनल लेवल पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसका सुझाव दीजिए। और वो सुझाव उन्होंने खुद सुने हमसे और ये हमें भरोसा दिया कि जो भी सुझाव हम दे रहे हैं वो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम वो खुद करेंगे। तो मोदी जी ने इतना प्रोत्साहित किया हमको उस दिन। उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया कि हम इंडिया के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बट हमारी जो ताकत है, जो हमारी शक्ति है, उससे हम ग्लोबल लेवल पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसकी तरफ सोच बढ़ाएं कि हम यहाँ तो भागीदारी कर ही रहे हैं बट हम वहाँ पे भी कैसे करें। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे यदि आप देखें तो 2016 से लेके आज तक 33% इम्प्रूवमेंट है। तो ये है उनका कंट्रीब्यूशन मोदी जी का कि आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आप कैसे अपने लेवल पे, अपने गांव, अपने देश और फिर ग्लोबली कैसे आप इम्पैक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की हमारे जैसे स्टार्टअप्स के लिए कि 16 जनवरी को उन्होंने नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया। मतलब हर साल ये डे को एक स्टार्टअप डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने स्टार्टअप्स को। तो चाय पे चर्चा उन्होंने आयोजित किया पहला। ज़्यादातर उस वक्त के जो राजनीतिक लीडर्स थे वो लोक संपर्क के पुराने तौर तरीके अपनाते थे कि भाई गांव-गांव जाना है, लोगों को भेजना है, बड़ी-बड़ी सभाएं संबोधित करनी है। चाय पे चर्चा जो कार्यक्रम मोदी जी ने आयोजित किया वो मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक बहुत ही जो नए तरीके का संपर्क आयोजन था वो उस वक्त हुआ। आई थिंक पहली बार वो हुआ था कि एक साथ 1500-2000 लोगों से उन्होंने संपर्क किया और बातचीत की। तो वो बहुत ही एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, नए साधनों को, नए तरीक़ों को यूज़ करते हुए और एक यंग क्राउड को जो अपील करता है वो वाला तरीका उनका रहा। चाय पे चर्चा जो आयोजन हुआ था वो मेरी फैक्ट्री पे भी हुआ था और हम करीब 150 लेडीज़ वहाँ इकट्ठी हुई थी और मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातचीत हुई थी। उस वक्त उन्होंने ऑनलाइन मार्केट की बात की लेडीज़ के लिए। ऑनलाइन मार्केट तब इतना प्रचलित नहीं था जितना आज है। तो उनका विज़न वहाँ तक था कि ये आने वाला है। तो जो आने वाला है उसको देख पाना आई थिंक वो उनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है कि ये आगे जो फ्यूचर है ये इसका है। लेडीज़ के लिए ऑनलाइन मार्केट की बात की उन्होंने। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में लेडीज़ को जाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं आज ऑर्गेनिक कितना चल रहा है। तो ये चाय पे चर्चा पे हमारा अच्छा इंटरेक्शन हुआ मोदी जी से। हमारी बहनों ने प्रश्न भी पूछे, उन्होंने अच्छे से विस्तृत जवाब भी दिए। मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्सनल ग्रूमिंग का अपना एक कोर्स करूँगी, तो मैंने कॉस्मेटोलॉजी कोर्स के लिए एनरोल कर लिया और उसी दौरान वर्ल्ड स्किल्स का कंपटीशन आया। सो ये एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स होता है स्किल्स में और अपना हुनर दिखाते हैं और यू नो इट्स लाइक अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। जैसे आपने स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स के बारे में सुना होता है, ये सेम होता है बट ये सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये होता है कौशल में। और मैंने बोला चलो क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने एनरोल किया। ब्यूटी थेरेपी के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। उस दौरान मुझे स्किल इंडिया के बारे में पता चला। स्किल इंडिया ने अगर मैं आपको बताऊं, स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे इस सक्सेस में, क्योंकि स्किल इंडिया की वजह से आज
इन सारे कौशल को मान्यता मिली है। स्किल इंडिया की बदौलत मुझे इंडिया के सारे बेस्ट ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग मिली। अगर मैं आपको बताऊँ तो शायद अगर मैं खुद से ये सारी ट्रेनिंग्स करने जाती तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था इनफैक्ट, क्योंकि मेरी उम्र इतनी कम थी। सो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल टू स्किल इंडिया कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया इतना बड़ा, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हुनर की क्या कीमत है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक गोल्ड मेडल जीता किसी स्किल में, एंड दैट्स वाई मोदी जी ने मुझे बुलाया और मैं स्टेज पे गई। मैंने उनको थैंक यू बोला, मैंने बोला आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ये जो पूरा मान सम्मान मिल रहा है क्योंकि आपने स्किल इंडिया लाया। तो उन्होंने मुझे बस ये एक चीज़ बोला, बेटा तुम करोड़ों की आबादी से चुन के अपना देश का झंडा वहाँ पे फैला के आए हो, तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुमको थैंक यू बोल रहा हूँ। आई थिंक उनके वो वर्ड्स थे जिसकी वजह से मैं फिर एक बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई, फिर मैंने एक बार परफॉर्म किया और वो मेडल लेके मैं वापस आई। ये क्या तो ब्यूटी पार्लर वाली है, ये क्या ये तो वेल्डर है, ये इस तरीके से लोग बात करते हैं। बट आज पीपल कॉल इट विद रिस्पेक्ट, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ये शेफ है, ये पेटिसरी शेफ है, यू नो। तो वो एक जो फर्क था ना कि यहाँ से यहाँ पे पहुँचा दिया कौशल ने। आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। खेल में देश का नाम रोशन करने वाली की कहानी भी कोई कम दिलचस्प नहीं। सपना देखा और साकार कैसे हुआ, ये सुने उनकी जुबानी। जब मैंने मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल जीता, उसके बाद में मुझे टॉप स्कीम के थ्रू सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था। और टॉप स्कीम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है इस बार के जो भी रिज़ल्ट रहा है, चाहे वो ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स हो। इसमें जो भी एथलीट्स हैं उन्हें परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्ट करा जाता है, उन्हें ओपीए दिया जाता है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ का सपोर्ट हो, चाहे आपको मेडिकल वे में चाहिए और किसी भी, वो लोग हमेशा एक वन कॉल अवे ही रहते हैं। और जब भी कोविड का टाइम चल रहा था और सब कुछ लॉकडाउन में था, सारी रेंजेस सब कुछ क्लोज था, तभी उन्होंने मुझे एक डिजिटल टारगेट सेटअप मेरे घर में इंस्टॉल करवाने में हेल्प करी। और मैं उसमें जो मैंने प्रैक्टिस करी है उन महीनों में जो लॉकडाउन के थे, उन प्रैक्टिस ने मुझे काफ़ी हेल्प कराया है पैरालंपिक गोल्ड जीतने में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक जगह आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप एक जगह आपको कुछ एक रे ऑफ होप मिल रही है, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो वो उस पूरे नेगेटिव एनवायरनमेंट में काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो उसके लिए टॉप स्कीम काफ़ी सपोर्टिव है एथलीट्स को लेकर। 2010 जब से मैंने शूटिंग शुरू किया तब से अभी तक की जर्नी देखें तो जो मेरा सपना था कि मुझे शूटिंग को बहुत आगे लाना है, और जो मैंने इतने साल शूटिंग को दिए हैं, शूटिंग ने जो मुझे इतना आगे बढ़ाया है मोदी सर के सपोर्ट के साथ, तो वो मैं अचीव कर रही हूँ धीरे धीरे। जो स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल था लाइफ में, और जो राइफ़ल मेरा सबसे पहले मोदी सर ने गिफ्ट किया, दूसरा राइफ़ल भी मोदी सर ने गिफ्ट किया, और जब घर पे आए थे तो उनको मैंने बोला था कि सर मुझे शूटिंग को बहुत आगे लाना है गुजरात में। तो तब मुझे मोदी सर ने बोला था कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ ही है, तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। तो वो उस सपोर्ट के साथ, अगर उस समय को लेकर आज तक अगर आप कंपेरिजन करें, तो मैंने मेरा खुद का एकेडमी बनाया है, और उसमें ऐसा है कि जो भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कैश अवार्ड मिला, जो भी मिला, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। क्योंकि आनंद से या फिर जो ये एरिया है उसमें बहुत कम शूटिंग में थे, बहुत ही 1-2 लोग ही होंगे उस टाइम शूटिंग में। तो मोदी सर के सपोर्ट के साथ एकेडमी स्टार्ट हुआ मेरा। और जो अभी आप देखेंगे तो आनंद से ही, मेरे जो सिटी है आनंद से ही, मैंने 8 से 9 बच्चे एक ही साल में इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हो जाए या अभी जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने, वहाँ तक मैंने क्वालिफाई करवा दिया है उनको। मतलब वो इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अभी इंटरनेशनल के ट्रायल्स के लिए वो क्वालिफाई हो चुके हैं। तो ये था कि वो विज़न, मोदी सर के विज़न के साथ, जो उनका विज़न था और हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ है और उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो भी मेहनत है, वो मोदी सर के विज़न के साथ साथ चलते चलता 2010 से लेके अभी तक वो एक, आप बोलेंगे तो साथ साथ चलते चलते मैं भी यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं एक राइफ़ल नहीं था, उसकी जगह आज मैं एक एकेडमी भी चला रही हूँ, और साथ साथ में बहुत सारे बच्चों को जो आगे आए हैं अभी और भी आगे आएंगे। और जो स्पोर्ट्स
का कोई विजन नहीं था, वो अभी एक है कि हाँ अभी आ चुका है, वो विजन आ चुका है। कि पहले जो था कि नहीं स्पोर्ट्स में क्या होगा, कुछ नहीं होता है, या गुजराती को स्पेशल देख के बोलेंगे हाँ ये दाल भात खाने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक के पहले जो हमने एक्सीडेंट हुआ, हमको कितना मुश्किल से हमने ट्रेनिंग किया। जब लॉकडाउन हुई थी काफ़ी मुश्किल हुई थी कि हम कैसे ट्रेनिंग करें, हम ओलंपिक भी आ रही है तो हम कैसे मैनेज करें वो सब। पर हमने सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे यूएसए जाके ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, इस बार ओलंपिक में मेडल लेने के लिए मैं ट्रेनिंग अच्छे से करना चाहती हूँ। वो सब रिक्वेस्ट किया हमारी फेडरेशन की तरफ से और टॉप्स की तरफ से। तो एकदम से हमने एक दिन में हमारी प्रधानमंत्री जी सर ने हमको एक दिन में ही उन्होंने एक्सेप्ट करके हमको यूएसए भेजा था ओलंपिक की प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद मैं अच्छे से ट्रेनिंग किया और ओलंपिक में पहला दिन ही मैंने मेडल लेके इंडिया के नाम को ऊपर किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं ओलंपिक जाके इंडिया के लिए कुछ करने का मौका मिला। और इसके बाद जब मैंने मेडल लिया था तो सबसे पहले हमारी प्राइम मिनिस्टर सर जी ने मुझे कंग्रेचुलेशन दिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अचीव है। इनकी हर प्लेयर्स की सपने होते हैं ओलंपिक में जाके मेडल लेना और ऐसा ही सपोर्ट मिलना। तो मेरा उसी दिन ही सर ने मुझे कंग्रेचुलेशन बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर हर टाइम हमारी और सारी प्लेयर्स के लिए सपोर्ट करते रहते हैं। ओलंपिक से पहले भी हम सब जिम कॉल हम बात करते हैं, इंटरेस्ट देते रहते हैं कि हमारे जो कमी होते हैं वो सब कैसे इम्प्रूव करें। तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और सर ने हमको बहुत ही प्यार दिया है। हर टाइम हमको क्या कमी है क्या नहीं वो सब पूछते रहते हैं। तो ये हम प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ही सर हम प्लेयर्स को सपोर्ट देते रहेंगे तो हम इंडिया के लिए इंडिया के नाम को हम ज़रूर ऊपर करते रहेंगे। 2007 में मैं जब नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आई, अब उस साल वो गुजरात के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल था जिसकी वजह से गुजरात के रैंकिंग में भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया था और हम लोग काफ़ी अच्छे रैंकिंग पे पहुंच गए थे। तो उस एक मेडल के चलते मेरा नाम बहुत ही जल्दी पूरे मिनिस्ट्री में फैल गया कि भाई ऐसा एक लड़की जीत के आई है और जिसकी वजह से गुजरात के रैंकिंग में इतना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो जब मैं वापस आई मुझे मार्च 2007 7 मार्च 2007 के दिन मोदी जी सर ने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे बारे में पूछ के रखा था कि भाई ये तो स्विमर थी, अब ये इस गेम में कैसे पहुंच गई। फिर उन्होंने जब वहाँ पे मेरे साथ मीटिंग की तो मोदी जी ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप इस गेम में कैसे आए। तो मैंने उनको बताया कि मैं 2006 नवंबर जो 4 महीने पहले ऐसे भोपाल गई थी नेशनल खेलने के लिए और वहाँ एक्वाथलॉन में गोल्ड मेडल आया। ट्रायथलॉन का इवेंट नेक्स्ट डे था तो उन्होंने मेरे को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी, मेरे फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने, और उस हिसाब से मैं ट्रायथलॉन की गेम पहली बार वहाँ पे खेली। मेरे पास साइकिल नहीं थी तो वहाँ जो लेबर थे जिन्होंने मंडप बांधा था उनकी साइकिल लेके मैंने ये कंपटीशन में पार्ट लिया और वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया। उसके बेस पे मुझे ये नेशनल गेम्स में सिलेक्शन मिला। लेकिन हमारे घर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं और हम साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने जो 8,000 की नॉमिनल यहाँ पे जो साइकिल मिलती है उस पर ट्रेनिंग किया और वही लेके वहाँ पर गई। अब बाकी सबके पास रेसिंग साइकिल थी 1.5-2 लाख की जो कि एक्चुअल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़ की जाती है। उनके सामने मैं इस साइकिल पे कम्पीट करके इस हिसाब से मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो बड़े खुश हो गए। मोदी जी ने उस वक्त मुझे कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ना एक प्रॉपर इक्विपमेंट ना प्रॉपर इतना गाइडेंस या कुछ, और फिर भी हमारे गुजरात की लड़की इतना अच्छा परफॉर्म करके आई है, अपना देश भर में अपना नाम करके आई है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो जब उन्होंने बाद में मुझसे पूछा मोदी जी ने कि आपको किस हिसाब का रिक्वायरमेंट होता है, किस हिसाब की साइकिल इंटरनेशनली यूज़
की जाती है कि क्या इक्विपमेंट प्रॉपर होते हैं इस गेम के लिए। तो मैंने मोदी जी को बताया कि भाई ये इतना रिक्वायरमेंट होता है, और उन्होंने कॉस्टिंग के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि 1.5 से 2 लाख के आसपास का साइकिल आता है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना है नहीं, तो मैं नहीं सोच रही कि इस गेम में मैं आगे जा पाऊँगी, मैं शायद वापस स्विमर ही कंटिन्यू करूँगी एज ए स्विमर। तो बस मोदी जी ने उस दिन ये इतनी बातें सुन ली। नेक्स्ट डे मेरा पूरे स्टेडियम के सामने गांधीनगर में 1 मार्च को वुमेंस डे में मुझे स्पीच देना था, पूरे मिनिस्ट्री सारे एथलीट्स के सामने मैंने वहाँ पे अपना स्पीच दिया। और जैसे ही मैं वहाँ स्टेज से उतर रही थी और मोदी सर का स्पीच का जब वक्त हुआ, तो उन्होंने उसी स्पीच में मेरी स्टोरी भी बताई कि भाई ये ऐसी लड़की है जिसके पास कुछ ना होने के बावजूद उसने इतना मेहनत किया और अपने मतलब विल पावर की वजह से वो यहाँ तक जीत के आई है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और उसी दिन उन्होंने 2 लाख रुपए सेंक्शन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से इस बच्ची को हम 2 लाख रुपए देंगे ताकि वो एक प्रॉपर इक्विपमेंट अपना खरीद सके और आगे बढ़ सके। तो वो एक बड़ी खुशी की और बहुत यादगार इंसिडेंट था मेरे लिए, और देखा जाए तो मेरे करियर में एक किक स्टार्ट मिल गया, वरना मैं शायद ट्रायथलॉन कभी परस्यू नहीं करती। जब नरेंद्र साहब मोदी साहब जी जब गुजरात में थे, उनका जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हर घर उन्होंने चिट्ठी भेजी थी, वो चिट्ठी हमारे घर भी आई थी क्योंकि हमारा घर तो बंद था। तो फिर पास वालों ने पापा को दी कि भाई ये चिट्ठी आई है, तो पापा तो अनपढ़ थे, उनको तो पता नहीं था कौन सी चिट्ठी है। फिर उन्होंने वो दिखाई तो उन्होंने बोला कि हमारे जो गुजरात के मोदी जी साहब हैं वो ये अभियान चला रहे कि गुजरात की जो बेटियां हैं, भारत की जो बेटियां हैं वो पढ़े लिखे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था। क्योंकि पहले ऐसा ज़्यादातर बेटियां नहीं होती थी, वो ऐसे बचपन में मार देते थे, या फिर जिनकी बेटियां ज़्यादा होती है तो वो बचपन में शादी करवा देते, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करवाते थे। तो फिर मेरे पापा को ये लगा कि ये जो मोदी जी साहब हैं वो गुजरात की बेटियों की भविष्य की चिंता करते हैं, तो मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं उसकी चिंता क्यों ना करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी मम्मी नहीं लिखी है, पढ़ी लिखी है, क्योंकि उनको जो दिक्कत हो रही थी उनके लिए लाइफ में, क्योंकि वो अनपढ़ थे, क्योंकि वो चिट्ठी भी उन्होंने किसी और से पढ़वाई और सुनी। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं गांव में आकर कुछ धंधा कर लूँगा, कुछ काम कर लूँगा, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ। फिर उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, पढ़ाया, और उस हिसाब से मेरी पढ़ाई शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, हम गांव में तो आ गए, फिर मेरी पढ़ाई चालू हुई। दूसरा पड़ाव आया कि रणोत्सव चालू हुआ कच्छ में, सारे लोग बाहर से घूमने आते थे रणोत्सव में, और हम तो वहाँ प्रॉपर कच्छ के थे। तो हमारे सर ने भी बोला कि अब हम सब स्कूल वाले हैं, जो हम सबको वहाँ पे घूमने जाना है, सब बच्चों को लेके हम जाएंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा। और उस वक्त तो क्या होता है कि कच्छ में हम लोकल थे, तो हमें तो ऐसा पता नहीं था कि कच्छ में इतना अच्छा दिखने लायक बना है, और बाहर से लोग यहाँ पे सब देखने आते हैं, प्रवास के लिए आते हैं सब लोग। तो फिर हम वहाँ पे रणोत्सव में गए स्कूल के सब लोग, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले थे, और हम सब बच्चे आगे बैठे थे, जैसे हम तो अपनी मस्ती में थे। तो थोड़ी देर में ही मोदी साहब जी स्टेज पर आए, और वहाँ पे उन्हें दूर से हमने देखा, पर हम तो अपनी मस्ती में ही थे, क्योंकि हमने सब बोलते थे ना कि गुजरात के मुख्यमंत्री ये है, तो हमने सुना था, पर ये पता नहीं कि यही है और ये हमारे सामने बैठे हैं। तो फिर वो सब बच्चों को ऐसे बुला रहे थे, सब छोटे छोटे बच्चे, हम सब अपनी मस्तियाँ कर रहे थे, सबको बुला रहे थे, किसी को कविता बुला रहे थे, किसी को जोक्स ऐसे बुला रहे थे, जो आपको आता है वो आप सुनाइए। तो 7वीं 8वीं बारी मेरी थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ पे बुलाएंगे यार, मैं जाऊँगी और क्या करूँगी। और तब मेरी बारी आई, मैं थोड़ी क्या नर्वस भी थी, वो घबराते थे ना बच्चे, अचानक वो स्टेज पर बुला रहे थे इतने बड़े लोग, और वो तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी। और वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्ची तुम्हें क्या आता है। तो मैंने बोला कि मुझे तो सिर्फ गाना आता है। तो मैंने हमारे जो कच्छ की जो हमारी भाषा है, हमारी लोकल हमारी कल्चर भाषा है कच्छी भाषा, तो उनमें से मुझे 1-2 गाने आते थे, तो मैंने वो अपनी कच्छी भाषा के वहाँ पे सुनाए उनके सामने। तो फिर उनके मोदी साहब के मुंह पर मैंने स्माइल देखी, और वो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि तुमने अच्छा गाया है।
और फिर उन्होंने मुझे 250 रुपया दिया और उनके फेस पर, मोदी जी के फेस पर स्माइल थी, तो मैं भी खुश हो गई क्योंकि पहले मैं घबराई हुई थी, फिर मैं ऐसे खुश हो गई, उन्होंने मुझे 250 रुपया दिया। और तब तो ऐसे पिता समान कोई पिता ही होता है जो अपनी बेटी को ऐसे पैसे देता, ऐसा मुझे लगा। फिर उन्होंने मेरे सर को बुलाया और उन्होंने बोला इसको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिलवाना और उसके बाद इसको जो ये गाती है उसको आप स्कूल में गवाना। और मुझे भी बोला कि बच्ची पहले पढ़ाई में ध्यान देना, फिर तुझे जो शौक है जो गा है तो तू गा सकती है, पर पढ़ाई तू अपनी पूरी करना। मैं तो तब तो खुश हो गई थी कि मुझे मोदी जी ने पैसे दिए। तो मैंने घर पे जब हम वापस गए तो मैंने पापा को बोला कि मुझे पैसे मिले और मैंने वहाँ पे गाया था। पापा ने बोला, उनको ऐसा नहीं लगा कि साहब खुद आए थे, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी आए थे। नहीं तू तो झूठ बोल रही है। मैंने उनको दिखा, देखो पैसे दिए। फिर उन्होंने वो पैसे संभाल के रखे, तू जब तुझे कुछ लेना हो तब मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि तब मैं तो बहुत उत्साहित थी क्योंकि मुझे वहाँ गाना भी मिला जो मुझे शौक था। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी वजह से तो मैं यहाँ पे पहुँची थी। और सर ने भी बोला कि मोदी साहब जी भी मुझे बोला और 250 रुपये दिए कि अब पढ़ो। तो फिर मैंने अपना पढ़ाई अपनी जारी रखी। आज मुझे मोदी जी की वजह से एक नई पहचान मिली है। आज मुझे सब लोग मेरे गांव में जो है वो ड्रोन दीदी या ड्रोन पायलट के नाम से पहचानते हैं। मुझे ऐसा नहीं बोलते कि इसकी बहू है, इसकी पत्नी है, वो नहीं, मेरी पहचान ही अलग हो गई कि आज मुझे सब ड्रोन दीदी या ड्रोन पायलट के नाम से पहचानते हैं। ड्रोन दीदी योजना में हमें इतना लाभ मिला है कि आज मैं लखपति बन गई हूँ। मोदी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस योजना के अंतर्गत आज मैं लखपति दीदी की गिनती में आ गई हूँ। मुझे ड्रोन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया गया है। मोदी जी ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है कि हम खेत में जाएंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कि हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ड्रोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो उसे चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए हमें जनरेटर भी दिया गया है। हमें वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया गया है। और पानी भी हमें वहाँ पे जाके ढूंढना नहीं है, उसके लिए भी हमें 5 बैरल पानी के दिए गए हैं। हम अपने साथ ही पानी ले जा सकते हैं। वहाँ पे खेत में जाके हमें कोई किसी चीज़ का ढूंढना है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई और 4 सेट हमें बैटरी के दिए गए हैं। इसलिए हम एक बार फ्लाई करेंगे, दूसरा सेट ख़त्म हो जाएगा तो हम उसके चार्ज पे रख के ड्रोन उड़ा सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और हमारे ऑर्डर भी मिल रहे हैं रोज़ाना कि हम वहाँ पे जाके ड्रोन से खाद या कोई कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। हमें उससे मुझे तो फ़ायदा ही मिला है कि मैं लखपति बन गई हूँ। मुझे इससे इनकम हो रही है और मैं अपना खर्चा, मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे। मैं अपने आप खुद अपना जो काम है वो कर सकती हूँ।